Good morning, students. Now, in today's lecture, we will discuss a new point, that is Wheatstone's bridge. Okay. अब Wheatstone's bridge मतलब क्या होता है? देखिए, जैसे यहाँ पर एक सर्किट डायग्राम दिखाई. There are four resistances R1, R2, R3, R4 are connected such that it forms a quadrilateral A, B, C, D. Okay. Now between A and C point, a cell is connected and a plug key. Okay. And between B and D point, a galvanometer is connected. Galvanometer is a device which is current sensitive. Okay, students. तो galvanometer एक ऐसा डिवाइस है जो करंट सेंसिटिव होता है. ओके, दैट इज अ स्मॉल डिवाइस, पोर्टेबल साइज galvanometer. ओके, तो अगर इसमें से करंट पास होता है तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन होगा, पॉइंटर है ना, जो पॉइंटर है. व्हेन नो करंट पासिंग थ्रू galvanometer, the position of pointer is at 0, that is at the center. Okay, and when current passes, then it will deflect towards right side or left side, depending upon the direction of current passing through it. So whenever there is current, we can find out whether there is current or not by using galvanometer. So galvanometer is current sensitive device. Okay, तो B and D के बीच galvanometer यहाँ पर हमने कनेक्ट कर दिया है. Galvanometer has a moving coil and coil को resistance होता है, so that G is the resistance of galvanometer coil, right? तो moving coil galvanometer can be used as ammeter and voltmeter. So moving coil galvanometer can be converted into ammeter, voltmeter. Ammeter मतलब to measure current, voltmeter to measure potential difference across any components. तो ये जो पार्ट है galvanometer, ammeter, voltmeter, ये हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट उस टॉपिक में डिटेल डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है. अब ये Wheatstone's ब्रिज है. ठीक है. अब इसमें क्या होता है कि एक बैलेंस कंडीशन होती है. अब बैलेंस कंडीशन कब होगी? देखिए, when plug key is closed, okay, that means current flows from positive to negative terminal. So this is the current I. करंट I. अब A पॉइंट पर आने के बाद क्या होता है? करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. सो करंट पासेस थ्रू द ब्रांच A, B, C and also from A, B, C, okay, and return to negative terminal of the cell. So this is the Wheatstone's bridge. Now balance condition क्या होती है? Now when we adjust resistances R1, R2, R3, R4 such that there is no current passing through the galvanometer. Okay, मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू ऐसे एडजस्ट करनी है R1, R2, R3, R4 so that there is no current passing through the galvanometer. अब galvanometer में से करंट पास नहीं होता, इसका मतलब क्या हुआ कि potential at B and potential at D must be same. We know that when potential level is same, there is no current passing. Okay, because if there is potential difference, current passing from higher potential to lower potential, therefore when there is no current passing through galvanometer, how can we say that galvanometer pointer shows zero deflection? There is no deflection. Okay, it is the pointer is on zero marking, there is no deflection. That indicates that there is no current passing through galvanometer. इसका मतलब B और D पॉइंट इक्विपोटेंशियल हो गए. ओके, ये इसका प्रिंसिपल है. देखिए प्रिंसिपल क्या है? In a closed circuit, there is no current flow between any two equipotential points. Now, when we adjust the resistance value R1, R2, R3, R4 so that there is no current passing through galvanometer, इसका मतलब B और D point equipotentials हो गए. Now, this condition is known as balanced condition. ओके, मतलब बैलेंस कंडीशन में क्या होता है कि VB is equal to VD. B और D पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है. अगर ऐसा होता है तो देन वन कंडीशन कौन सी होगी? दैट इज रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंसेस R1 by R2 is equal to R3 by R4. देखिए, when B and D point are equipotential, मतलब no current passing through galvanometer, but current can pass through rest of the circuit. ओके, लेकिन galvanometer में से पास नहीं होगी. दिस इज बैलेंस कंडीशन.
तब रेजिस्टेंस का रेशियो देखिए R1 बाय R2 इज इक्वल टू R3 बाय R4 होता है। या फिर अगर R1 अगर R3 को इधर लाते हैं, R3 इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाय R4, ये भी कंडीशन होगी, ठीक है। सो दिस इज बैलेंस कंडीशन। दिस बैलेंस कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए दो तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। अगर B और D पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है तो रेजिस्टेंस का रेशियो सेम रहता है, R1 बाय R2 इज इक्वल टू R3 बाय R4, या फिर R1 बाय R3 इज इक्वल टू R2 बाय R4, ओके। या फिर इसे रिवर्स कैसे याद रखना है, अगर किसी क्लोज सर्किट में, ओके, रेजिस्टेंस रेशियो सेम है, मतलब R1 बाय R2 इज इक्वल टू R3 बाय R4, इसका मतलब B एंड D पॉइंट पर पोटेंशियल कैसा होगा, सेम होगा। सो दिस इज बैलेंस कंडीशन, ओके, ये बैलेंस कंडीशन है। इसका यूज क्या होता है, देखिए अगर ये रेशियो देखिए, अगर B पॉइंट और D पॉइंट इक्विपोटेंशियल है, ओके, ऐसी कंडीशन दी है न्यूमेरिकल्स में, तो R1 बाय R2 इज इक्वल टू R3 बाय R4 होगा। आउट ऑफ दिस 4 रेजिस्टेंसेस, अगर 3 रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें दी है तो हम 4th रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसका मतलब Weiston's bridge in balance condition is used to determine the unknown resistance value, okay, तो ये इसका यूज होगा। This is the Weiston's bridge और Weiston's network और उसकी एक बैलेंस कंडीशन, ओके। अब ये बैलेंस कंडीशन हम प्रूव कर सकते हैं, ओके। दिस बैलेंस कंडीशन कैन बी प्रूव बाय 2 ways, दो तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। नंबर 1 बाय यूजिंग किरचॉफ्स सेकंड लॉ, मतलब बाय अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ, ओके, उसके इक्वेशंस हम अप्लाई कर सकते हैं। एंड सेकंड मेथड कौन सी होगी, बाय यूजिंग ओम्स लॉ। तो दोनों मेथड हम वन बाय वन यहां पर समझ लेते हैं। देखिए इसका प्रूफ, बाय अप्लाइंग फर्स्ट मेथड, बाय अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ, ओके। देखिए अब करंट I विथड्रॉ फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, A जंक्शन पर क्या होगा, करंट गेट डिस्ट्रीब्यूटेड, लेट द करंट पासिंग थ्रू दिस रेजिस्टेंस R1 is I1, करंट पासेस थ्रू रेजिस्टेंस R2 is I2, ठीक है। अब B पॉइंट पर देखिए फिर से एक जंक्शन आ गया, तो यहां पर क्या होगा, दैट I1 करंट अगेन स्प्लिट अप इनटू 2, ओके, लेट करंट पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर इज Ig, ओके। अगर पोटेंशियल सेम होगा तो करंट पास नहीं होगा गैल्वेनोमीटर से, लेकिन B और D पॉइंट का पोटेंशियल अनइक्वल है। अगर B का पोटेंशियल ज्यादा है D से तो करंट पासेस थ्रू गैल्वेनोमीटर फ्रॉम B टू D, ओके। सो दिस इज लेट करंट Ig पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर एंड रिमेनिंग करंट, देखिए टोटल करंट कितना है I1, उसमें से Ig करंट गैल्वेनोमीटर से पास होता है, तो रिमेनिंग करंट इज I1 माइनस Ig, राइट। नाउ अब देखिए D जंक्शन पर इधर से कितना करंट आता है, I2, एंड फ्रॉम गैल्वेनोमीटर Ig, सो दोनों अप्रोचिंग करंट है, तो यहां पर क्या होगा, दोनों की एडिशन होगी, सो दिस करंट इज I2 प्लस Ig, राइट स्टूडेंट। C पॉइंट पर देखिए I1 minus Ig current is approaching, I2 plus Ig this current is also approaching, दोनों की फिर से एडिशन होगी। अब देखिए I1 minus Ig, ओके, प्लस I2 प्लस Ig, तो ये माइनस Ig प्लस Ig कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब I1 प्लस I2 that is total current, so it is equal to I, that is I1 plus I2। करंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड उसकी डायरेक्शन समझ में आ गई, ओके स्टूडेंट। नाउ अब देखिए बाय अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ, फर्स्ट लॉ तो हमने यहां पर अप्लाई किया एट जंक्शन, है ना, करंट स्प्लिटिंग एंड कंबाइनिंग। नाउ सेकंड लॉ मतलब वोल्टेज लॉ यहां पर अप्लाई करना है और ये कंडीशन हमें प्रूव करनी है, ठीक है। देखिए इन बैलेंस कंडीशन, इन बैलेंस्ड कंडीशन, अब बैलेंस कंडीशन में क्या होता है, VB इज इक्वल टू VD,
पोटेंशियल एट बी एंड पोटेंशियल एट डी सेम होता है, राइट? अगर पोटेंशियल बी और डी पॉइंट पर सेम है, मतलब थ्रू बी डी या थ्रू गैल्वेनोमीटर करंट पास होगा क्या? नहीं। इसलिए करंट IG की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। ये बैलेंस कंडीशन है। तब हमें ये इक्वेशन प्रूव करना है, राइट? अब देखिए, अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ टू द लूप ABDA, फॉर द लूप ABDA, ओके, दिस इज द लूप ABDA। यहां पर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करना है। अब साइन कन्वेंशन आपको पता है, when we are tracing in the direction of current, प्रोडक्ट आया क्या लेना है? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट तब पॉजिटिव लेना है प्रोडक्ट, ठीक है? देखिए A to B करंट कितना है? I1, रेजिस्टेंस R1, and we are moving from A to B, and what is the direction of current? A to B, so in the direction of current, तो प्रोडक्ट क्या होगा? नेगेटिव, माइनस I1 R1, ओके। देन B to D ऐसे जाना है, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट कितना है? IG, और रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर G, राइट? अब यहां तक आ गए। नाउ D to A जाना है, मतलब इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट कितना है यहां पर? I2, रेजिस्टेंस R2, सो प्लस होगा ये I2 R2, ओके, इज इक्वल टू क्या होता है? 0, ठीक है? अब देखिए, इन बैलेंस कंडीशन IG की वैल्यू कितनी है? 0, तो ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी, ओके। माइनस साइड चेंज करने के बाद प्लस हो जाता है, देयरफॉर हमें इक्वेशन क्या मिलेगा? I1 R1 is equal to I2 R2. Let this is equation number 1. Okay स्टूडेंट, अब सेकंड लूप देखिए, BCDB। इस लूप पर हम किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं। कौन सा लूप होगा ये? BCDB, ये वाला लूप, ठीक है? अब देखिए B to C, when we are moving in the direction of current, तो यहां पर देखिए करंट कितना है? I1 माइनस IG एंड रेजिस्टेंस R3, तो प्रोडक्ट क्या होगा? माइनस माइनस करंट I1 माइनस IG, ओके, इनटू R3। देन नाउ मूव फ्रॉम C to D, मतलब इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट। अब यहां पर करंट कितना है? I2 प्लस IG एंड रेजिस्टेंस R4। अपोजिट डायरेक्शन मतलब प्लस साइन होगा यहां पर, करंट I2 प्लस IG, ओके, एंड रेजिस्टेंस R4। Now move from D to B, मतलब in opposite direction of current flowing through the galvanometer, और galvanometer का रेजिस्टेंस कितना है? G, मतलब यहाँ पर होगा प्लस IG into G and it is equal to 0, ओके। अब जहां पर भी IG होगा वहां पर हमें 0 लिखना है, मतलब ये टर्म 0 होगी पूरी, यहाँ पर भी 0 होगा और ये पूरी टर्म 0 होगी। अब देखिए माइनस I1 R3, ओके, प्लस I2 R4 is equal to 0. Therefore I1 R3 is equal to I2 R4. This is equation number 2, ठीक है? This is equation number 2. Divide equation 1 by 2, we get, देखिए I1 R1 divided by I1 R3 is equal to I2 R2 divided by I2 R4, है ना? अब I1 get cancel, I2 get cancel, therefore R1 by R3 is equal to R2 by R4, ओके। तो ये स्टेप यहाँ पर प्रूव हो जाती है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, R1 by R2 is equal to R3 by R4, वन एंड द सेम। सिर्फ ये दो टर्म्स यहाँ पर चेंज कर दिए हमने, ओके स्टूडेंट्स। तो ये फर्स्ट प्रूफ होता है जहां पर हमने किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करके ये कंडीशन प्रूव कर दी है, ठीक है? अब सेकंड मेथड कौन सी होगी यहाँ पर? सेकंड मेथड बाय अप्लाइंग ओहम्स लॉ, ओके। अब ओहम्स लॉ क्या होता है? मतलब इक्वेशन हमें पता है, V इज इक्वल टू
I into R. Okay, what is V? That is potential or potential difference. I current, R resistance of the component. देखिए, in balanced condition क्या होती है कि B and D पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा, सो इक्वी पोटेंशियल, सो VP is equal to VD. ठीक है, VP is equal to VD, मतलब पोटेंशियल एट B पॉइंट एंड पोटेंशियल एट D पॉइंट सेम. ओके, देखिए करंट passes from positive terminal to negative terminal, मतलब A पोटेंशियल पर B पॉइंट से पोटेंशियल ज्यादा होगा और A पर D पॉइंट से भी पोटेंशियल ज्यादा होगा. ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो इसको VA माइनस VB इज इक्वल टू VA माइनस VD. इसका मतलब क्या होता है कि VA माइनस VB मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कंपोनेंट रेजिस्टेंस R1. VA माइनस VD का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कंपोनेंट R2. ओके, तो ये दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा. पोटेंशियल डिफरेंस देखिए, अब सपोज अ सेल इज अप्लाइड. ओके, EMF अगर यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं 10 वोल्ट, तो A पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा 10 वोल्ट, राइट, बिकॉज यहाँ पर कंपोनेंट नहीं है तो एनर्जी भी यूटिलाइज नहीं होगी टू फ्लो द करंट. लेकिन यहाँ पर कंपोनेंट्स हैं. ओके, कुछ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूटिलाइज होगी अगेंस्ट द रेजिस्टेंस, तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, मतलब पोटेंशियल कम होगा, दैट इज नोन एज पोटेंशियल ड्रॉप. ओके, सपोज यहाँ आते आते बी पॉइंट पर पोटेंशियल होगा 8 वोल्ट, मतलब टू ओवरकम द रेजिस्टेंस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है 2 वोल्ट. ओके, तो डी पॉइंट पर भी कितना होगा 8 वोल्ट, बिकॉज यहाँ पर भी पोटेंशियल ड्रॉप 2 वोल्ट होता है. इसका मतलब ये होगा, ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन A एंड B इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड D. अब पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है IR. अब देखिए A एंड B के बीच पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट. सो हम यहां पर लिख सकते हैं I1 R1 इज इक्वल टू, अब A और D के बीच पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस I2 R2 is equal to I2 R2. Let this equation number is 1. Okay. अब सिमिलरली देखिए, B पॉइंट पर 8 वोल्ट पोटेंशियल है, D पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है 8 वोल्ट. ओके, अब यहाँ पर देखिए इस कंडीशन को फिर से लिखते हैं, VB is equal to VD, that is बैलेंस कंडीशन, BD पॉइंट इक्विपोटेंशियल. ओके, अब VP माइनस VC इज इक्वल टू VD माइनस VC. दोनों साइड में हम VC सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या होगा, देखिए VB माइनस VC, VB माइनस VC मतलब इस दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है ना, और इज इक्वल टू साइन है यहाँ पर VD माइनस VC मतलब D और C के बीच पोटेंशियल ड्रॉप. तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड C एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन D एंड C, ये दोनों भी सेम हो जाते हैं इन बैलेंस कंडीशन. ओके, अब पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन B एंड C कितना होगा, द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस. ओके, तो यहाँ पर करंट कितना होगा I1 माइनस IG इनटू रेजिस्टेंस R3 इज इक्वल, अब यहाँ पर करंट कितना है I2 प्लस IG इनटू रेजिस्टेंस R4. अब करंट की ये वैल्यू हम कब लेने वाले हैं, जब कंडीशन बैलेंस नहीं होगी. लेकिन बैलेंस कंडीशन में क्या होता है IG 0 होता है, तो यहाँ पर IG की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इक्वेशंस क्या आ जाएगी फिर I1 R3 इज इक्वल टू I2 R4. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ओके, अब इन दोनों का हम रेशियो लेते हैं, तो I1 R1 डिवाइडेड बाय I1 R3 ओके इज इक्वल टू I2 R2 divided by I2 R4. तो I1 I2 get cancelled. Therefore R1 by R3 is equal to R2 by R4. राइट स्टूडेंट, तो इस तरह से ये प्रूव होता है, या फिर इसको
ऐसे भी लिखेंगे हम R1 by R2 इज इक्वल टू R3 by R4, राइट। तो इस दो तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं, फर्स्ट किरचॉफ्स लॉ एंड सेकंड ओम्स लॉ। नाउ यहाँ पर देखिए, अगर हम गैल्वेनोमीटर बी और डी के जगह पर ए और सी के बीच कनेक्ट कर देते, ओके, और फिर सेल प्लग की बी और डी के बीच कनेक्ट कर देते हैं, तो भी यहाँ पर बैलेंस कंडीशन होती है, तो यही इक्वेशंस ऑब्टेन होंगे। मतलब अगर हम गैल्वेनोमीटर और सेल की पोजीशन अल्टर कर देते तो बैलेंस कंडीशन पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। सो दैट्स व्हाई द ब्रांच और आर्म्स BD and AC are known as conjugate arms. Okay, students. Now we discuss, this is all about balance condition. Okay. Now in unbalanced condition, अब अनबैलेंस कंडीशन में क्या होता है? अनबैलेंस कंडीशन मतलब VB and VD are not equal. ओके, मतलब VB ग्रेटर देन VD अगर होता है तो करंट पासेस फ्रॉम B टू D। अगर VB की वैल्यू VD से कम होती है तो फिर करंट विल पास फ्रॉम D टू B, है ना। तो IG की वैल्यू जीरो नहीं होगी, दैट मींस IG इज नॉट इक्वल टू जीरो और VB इज नॉट इक्वल टू VD, मतलब B और D पॉइंट इक्विपोटेंशियल्स नहीं होंगे। देयरफॉर R1 by R3 is not equal to R2 by R4। तो ये अनबैलेंस कंडीशन हो गई। अब इसमें दो पॉसिबिलिटी है, ठीक है, जैसे अभी हमने डिस्कस की थी। नंबर एक कौन सी होगी कि इफ R1 by R3 greater than R2 by R4, okay, then VB less than VD, तो ये कंडीशन होगी। अब अगर B पॉइंट का पोटेंशियल D पॉइंट से कम है तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? D टू B करंट फ्लो होगा। और सेकंड पॉसिबिलिटी, इफ R1 by R3 ओके इज लेस देन R2 by R4, देन VB ग्रेटर देन VD, ये कंडीशन होगी। अगर B पॉइंट का पोटेंशियल D पॉइंट से ज्यादा होता है तो करंट की डायरेक्शन कैसे होगी? फ्रॉम B टू D। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर एक न्यूमेरिकल हम डिस्कस करते हैं। ओके, 4 रेजिस्टेंसेस 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम एंड X ओम आर कनेक्टेड टू फॉर्म Wheatstone's network. Wheatstone, name of the scientist. Okay, Wheatstone's network as shown in figure. Determine X if network is balanced with these resistances. मतलब ये 4 रेजिस्टेंसेस ऐसे जिससे नेटवर्क बैलेंस होता है। अब सपोज R1 is equal to 5 ohm, R2 is equal to 10 ohm, R3 is equal to 15 ohm and R4 is equal to X, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। देखिए इन बैलेंस कंडीशन, अब ये तो हमें क्लियर हो गया कि बैलेंस कंडीशन में B और D का पोटेंशियल सेम होता है, तब हम ये इक्वेशंस यूज कर सकते हैं, राइट। सो R1 by R2 is equal to R3 by R4, या फिर ये भी इक्वेशन ले सकते हैं, R1 by R3 is equal to R2 by R4। अब वैल्यूज रखिए इसमें, R1 की वैल्यू कितनी है? 5 डिवाइडेड बाय R2 10 is equal to 15 by X, है ना। अब देखिए इसका रेशियो कितना आएगा? ये 1/2, 5 2 जा 10। अब R1 by R2 is equal to R3 by R4 होता है। अगर R3 by R4 का रेशियो 1/2 आता है तो R3 by R4 का भी रेशियो कितना आना चाहिए? 1/2। अगर ये 15 है तो फिर X की वैल्यू उससे डबल होगी, मतलब 30 ओम। तो देखिए therefore X is equal to 2 into 15, 30 ओम। मतलब ये 4 रेजिस्टेंस का सेट हो गया, 5 10 15 30, जिससे Wheatstone's नेटवर्क बैलेंस होती है। ओके, तो इस तरह से हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट स्टूडेंट।